Uh, yes, my dear friends, let's start our session. Thank you all for joining. We'll start with a Naukar mantra, Pratna first, and Gayatri mantra, and then we'll start the session. Namo Arhantanang, Namo Siddhanang, Namo Ayaryanang, Namo Uvajayanang, Namo Loe Savasahunang, Eso Panch Namo Karo, Savo Pavo Panashano, Manglanancha Savesem, Padmang Havai Mangalang. Thank you. Gemini ji, please. Om Bhurbhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you all for joining. Today, first time on our platform, Mickey G is here with us. She's gracing us with her tremendous wisdom and her power connection with other universe, with her light language also, and taking us in the deeper meditation also. She will be sharing the wisdom first. She is from Punjab, Haryana, Duliana, right? Mickey ji? Punjab, Ludhiana. लुधियाना, सॉरी, लुधियाना Yes. लुधियाना से आए हैं. सॉरी, माय हिंदी इज, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, सो आई एम वेरी पुअर. थोड़ी प्रैक्टिस करती हूँ लेकिन इतना नहीं बोल पाती, फिर भी बहुत अच्छी बोल पा रहे हो. थैंक यू. लेकिन यू नो आपका सेशंस मैंने पहली बार अबाउट फ्यू मंथ्स बैक मैंने अटेंड किया था पीएमसी गुजरात में, और तभी आपने जो हमको जो मेडिटेशन कराया, एंड द फीलिंग्स आई गॉट इट वाज ट्रेमेंडस. एंड तब से मेरे को बहुत ही इतना लगाव हो गया था आपके साथ कि बस ऐसा ही लगा कि नहीं, ये हमारे प्लेटफॉर्म में भी मिक्की जी आने ही चाहिए. And you are so gracious that I had to ask only one time. मैंने एक ही बार आपको पूछा and तुरंत ही आपने जवाब दिया मुझे कि sure I will do it. And we are so lucky to have you. So lucky to have you, you know. Thank you so much. You are with a family also, just like all of us, you know. A lot of us are, you know, in the same boat like you are also. And there are quite a many people have health issues also. We have been doing the dhyan for last almost it will be in June, it will be 4 years. लेकिन बहुत लोग को फायदा हुआ है. And thanks to Patriji that he guided me to, you know, start the meditation group. And since then we are open to everyone. I'm not just bite by it. We are I'm follower of Jainism myself, and quite a many people are. At the same time, we have quite a many are Hindus also. So we are in a group of both, you know, Hindus and Jains. Some are Gujarati, some are, you know, not Gujarati. But you know, the sessions are going so very well, and amazing results are coming along with it. So it's thank you all masters, whoever are coming with us, that guides us in different ways, you know. So thank you for all. We're going to put you on the spotlight. Yes, very good, Sachin. Thank you, beta. So Mickey ji, thank you for coming. This platform is all yours. Please grace us with your wisdom, grace us with your amazing meditation, and we're looking forward to it. Thank you, ma'am. Thank you so much.
तो आज का हम ध्यान सत्र करेंगे और अपने भीतर उतरेंगे, और भीतर क्या है हमारे अंदर जानने की भी कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, सेंस करेंगे, फील करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो अंदर की यात्रा जो हम करते हैं, हमारी ये जो यात्रा है हार्ट सेंटर से होगी, क्योंकि बिना हार्ट सेंटर के हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। यही से वो जो पोर्टल है जो क्रिएटर दूसरे यूनिवर्स की ओर खुलते हैं। तो जिसका हार्ट सेंटर खुला होगा वो ही कनेक्ट हो पाएगा। तो इसीलिए जब हम ध्यान की जर्नी में आते हैं तो हम क्राउन से अपना ध्यान हटाकर अपना हार्ट सेंटर पर लेकर आते हो, क्योंकि यहीं पर ही सब कुछ जो कुछ भी है यहीं पर इकट्ठा होता है। आप डे टू डे लाइफ में देख लीजिए और अपनी पिछली पूरी आप अपनी यात्रा देख लीजिए, सबसे अफेक्टेड पार्ट हमारा हार्ट होता है। डे टू डे लाइफ में कोई अगर आप अ, आपको और लगता है कि कोई फोन ऐसा आ गया तो आप एकदम से हार्ट पर आपका हाथ जाता है। ओह माय गॉड, ओह, तो कहाँ जाता है हार्ट? ओह माय गॉड, आप ऐसा नहीं करते ओह माय गॉड, है ना? ओह माय गॉड, तो सबसे पहला आपका हाथ यहीं पर आता है। तो कितना सेंसिटिव पार्ट है ये हमारा हार्ट, और इसकी कितनी केयर चाहिए ये हम सीखेंगे आज के सेशन में, हम करेंगे। क्योंकि छोटी सी छोटी कॉन्ट्रैक्शन, आप समझ लीजिए 5 से 10 सेकंड की कॉन्ट्रैक्शन भी हमारे हार्ट सेंटर पे बहुत इम्पैक्ट डालती है। उसके सेल्स बंद हो जाते हैं, उसके हमेशा हमेशा के लिए जकड़े जाते हैं, और बहुत ज्यादा फिर ध्यान के बाद उनको हमको खोलना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं हम इतने साल हो गए हम कुछ समझ नहीं पा रहे, हम कहाँ पर है, लोगों को इतने अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, हम कहाँ पर अटके पड़े हैं। क्योंकि हार्ट का ये जो पोर्टल है ये बहुत सालों से, अब इसमें आपने 50,000 या 5 लाख दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो उनको खोलते खोलते बहुत वक्त लग जाता है। तो ये जो आध्यात्मिक हमारी जर्नी है, आसान जर्नी नहीं है। अगर आप देखें तो सबसे आसान है आंखें बंद करके बैठना, सबसे आसान है कुछ भी नहीं करना, सबसे आसान काम है। लेकिन सबसे मुश्किल भी हो जाता है आंख बंद करके बैठना। दोनों ही चीजें साथ साथ है। आप बहुत किसी को सुनोगे तो बहुत मोटिवेटेड हो जाओगे, ओ बहुत अच्छा हुआ। 4-5 अच्छे एक्सपीरियंस सुन लोगे तो और मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन एकदम से डिसहार्टन भी हो जाओगे। और मैंने कितनी बार देखा है कि जब लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं तो कुछ लोग बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, कि उनको लगता है या तो मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूं, मेरे साथ कुछ नहीं होता, मैं कहाँ पर हूँ, लोगों को इतने अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। और उस मेडिटेशन सेशन में भी वो अपना हार्ट बंद करके चले जाती है, जिसके पीछे हमने 1 घंटा लगाया होता है खोलने के लिए। तो बी वेरी केयरफुल। हमारा एक एक वर्ड, एक एक थॉट इस पोर्टल पर पहुंचता है। हमेशा इसको प्यार से सींचने की प्रैक्टिस करनी है अगर आपको आध्यात्मिक जर्नी में जरा सा भी आगे बढ़ना है। तो होता क्या है कि हम 1-1.5 साल लगाते हैं जितना आगे बढ़ने में, और 2-3 मिनट लगते हैं उसको उतना ही पीछे लेकर आने में। ये जर्नी ऐसी है। तो हम ऐसे ही चलते हैं, 5 सीढ़ियां ऊपर, 3 सीढ़ियां नीचे, फिर 8 सीढ़ियां ऊपर, 4 सीढ़ियां नीचे, और कभी कभी हम 20 सीढ़ियां चढ़ जाते हैं और एक ही झटके में फर्स्ट पे भी आ जाते हैं। ये 7 सीढ़ी वाला गेम है। और कभी कभी 99 पे भाई आके स्नेक डंक मारता है और फिर वापस 1 पे। तो इस तरह हम बैक आ जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये स्नेक कौन से हैं जो हम 7 सीढ़ी पे देखते हैं? ये हमारे ही अपने थॉट, हमारी ही अपनी जजमेंट। और होता क्या है कि हम कभी कभी इतने ज्यादा अवेयर में हो जाते हैं, ओह मैंने तो उसको गलत बोल दिया, ओह मैंने तो शाउट कर दिया, ओह मेरे को तो गुस्सा आ गया। ये सब भी
नेगेटिव थॉट है, व्हाई आर यू जजिंग योरसेल्फ? आप 3D डायमेंशन में, आप नीचे प्लेनेट अर्थ पे रह रहे हैं, आप रिएक्ट कर सकते हो, आप बोल सकते हो, लेकिन जब आप अवेयरनेस में होते हो तो आपको पता है कि आपको कितनी देर तक उस एनर्जी में रहना है। अगर आपने रिएक्ट कर दिया, कम बैक टू योर हार्ट और उससे पूछिए, परेशान किया ना मैंने आपको, तो नेक्स्ट टाइम मैं और अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। अभी भी अंदर कुछ है जिसको अभी हीलिंग की जरूरत है, अभी भी दरवाजे बंद है जिसको मुझे खोलना है। तो इंस्टेड ऑफ जजिंग, आपको अपने हार्ट से कम्युनिकेट करना है। गिल्ट और शेम में जब जाएंगे तो ये दरवाजा फिर बंद, इसके साथ बाकी नीचे वाले दरवाजे भी बंद। तो ये ऐसा होता है कि हम एक चिटकनी लगाते हैं हार्ट में, बाकी नीचे में अनगिनत चिटकनी अपने आप ही लग जाती है, ऑटो लॉक हो जाते हैं, सारे का सारा सिस्टम बंद। बहुत सारे लोगों के हार्ट इसलिए भी बंद है क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस को डील नहीं किया, हील नहीं किया, प्रोसेस नहीं किया। और जब जब हम किसी भी इमोशन को डील नहीं करते, हील नहीं करते, उसको प्रोसेस नहीं करते, हमारा हार्ट बंद, ट्रॉमा इतना ज्यादा हो जाता है। तो मेरे को ना इसका पूरा बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन अभी मैं बनाऊंगी, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे समझाए। तो एक इंसान यहाँ पर बैठा है, एक ट्रोमा आया छोटा सा, तो समझ लो उसके ऊपर 4-5 वो जो सीमेंट घोल के रखा होता है ना, उसमें बजरी होती है, उसके ऊपर डाल दिया, वो लिक्विड लिक्विड सा वो पूरी बॉडी में उसके फैल गया, एक ट्रॉमा। और थोड़ी देर बाद वो सीमेंट क्या होगा, वो जमना शुरू हो जाएगा, है ना, वो उस पर्सन के ऊपर गिर गया। समझ लो वो पर्सन कम से कम 5 साल ट्रॉमा में रहा, तो समझ लो 500-600 सीमेंट की बाल्टियां उसके ऊपर। और वो जब थोड़ी देर बाद जमता भी गया, क्योंकि इसको डील नहीं किया, हील नहीं किया, प्रोसेस नहीं किया, वो जम गया। अब 10 साल, 20 साल के ऊपर सोचो कितनी बाल्टियां उसके ऊपर। और जब उसकी डेथ हुई तो वो सब कुछ अपने साथ लेकर जाता तो कहीं भी नहीं, देयर इज नो डेथ, तो नेक्स्ट उसमें गया। अब वो पैदा ही 500-600 सीमेंट की बाल्टियां जो उसके ऊपर जमी हुई हैं हार्ट के ऊपर, वैसा हुआ। ये एक लाइफ टाइम की बात कर रही हूँ। और छोटे से, कुछ लोग तो बचपन से लेकर 50-60-70 साल तक जिए, तो कितना ट्रॉमा इकट्ठा करके जाते हैं। तो जब वो सीमेंट को जमता जाता है, जमता जाता है, जमता, वो पहाड़ की तरह हो गया, और उसके बीच में वो सोल दबी हुई है, वो जो शरीर है उसका। अब ये लाइफ टाइम है, पहले तो समझ ही नहीं आया, इतने जन्मों से हम इकट्ठा ही करते जा रहे थे। आराम से लेकर आते थे, जा रहे थे, मजे से आ रहे थे, जा रहे थे। हर बार बोल के आते थे कम से कम 500 बाल्टियां तो जरूर उतार के आऊंगा, 500 तो क्या, 5,000 और जमा के। क्योंकि एक ट्रोमा वाला पर्सन है, वो इतने बोझ के साथ आया है, उसको कुछ नहीं समझ, क्या ट्रोमा, क्या पेन, क्या प्रोसेस, क्या हीलिंग, क्या मेडिटेशन। उसको तो इतना ही पता है, ट्रोमा और पेन। तो कुछ लोग हार्ट की बीमारियों के साथ पैदा हुए, कुछ लोग किसके, और बढ़ती चली गई, बढ़ती ही चली गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब लोग, जो लोग ध्यान में भी आए, वो भी 20 साल से कहीं आंखें बंद करके बैठे हैं अभी भी। उन्होंने बाकी चीजें तो सीख ली, लेकिन प्रोसेस करना नहीं सीखा अपने इमोशन को, कि कैसे इनको प्रोसेस करना है। तो उस सीमेंट में से घास, पेड़ पौधे, पेड़ भी निकल आई, उसकी ब्रांचेस भी निकल आई। अब वो इतने ट्रॉमा के नीचे बैठा है, तो उसने, काफी लोग क्या करते हैं, ट्रॉमा को एज अ फैट अपने चारों तरफ जमा लेते हैं। तो उनको बहुत सेफ लगता है कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, बहुत मोटा। और आप देखो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उनको फैट बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, इट्स ओके, इट्स फाइन। वो अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। ना बोलने वाले को पता है, ना उससे समझ में आया कि मैंने ये अपने चारों तरफ क्या लेयर बनाई हुई है। तो वो ट्रोमा एकोमुलेटेड है, जिसको उन्हें नहीं पता कि इसको कैसे ठीक करना है ना। और बहुत सारी, एक तो छोटा सा है, इट मे बी परमानेंट नहीं है, लेकिन इट में भी बहुत सारे रीजन। कुछ लोग जो ट्रॉमा को अपने पेन में ले आते हैं, फिजिकल, उनकी बॉडी में हमेशा पेन रहेगा।
उनको नहीं पता, उनको पता कि बस मुझे पेन होता है। पेन क्या है मुझे नहीं पता। अगर हम बोल भी देंगे कि ट्रॉमा एकोमुलेटेड है, तो उसको अब करें कैसे, कैसे रिलीज करें अपनी बॉडी में। तो ये तो अब मेरे, जब से मैं बचपन से लोग बोलते, तब से ही मुझे पेन हो रहा है। कभी सारी बॉडी दुख रही है उनकी, क्योंकि ना डील किया, ना हील किया, ना प्रोसेस किया। उल्टा पेन की वजह से क्या कर रहे हैं, जब डेली पेन हो रहा है तो क्या करेंगे, और ज्यादा ट्रॉमा को। और अगर कोई उनको बोल देगा कि चलो मेडिटेट कर लो, तो वो ऐसे ही बंद करके बैठे हैं, वो भी हार्ट की तरफ ध्यान ही नहीं गया। जिसमें एक तो बेचारा हार्ट, और उसके ऊपर इतने सीमेंट जमा हुआ है, और ऊपर पेड़ पौधे, जंगली जानवरों ने छत्ते बनाए हुए हैं, और दे आर हैप्पी अपनी ही छोटी सी दुनिया में। और जब भी उनको जरा सा बात करे तो आंखों में से आंसू निकलना शुरू हो जाएगा। मेरे को नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे क्यों दर्द हुआ, क्यों। जरा सा कोई उनको प्यार कर देगा, जरा सा उनको पलोस देगा, तो वो वहीं पर मेल्ट हो जाएंगे। तो हमारी एनर्जी सिस्टम में हजारों हजारों जन्मों का ट्रॉमा डिपॉजिट है। और इसको कितना साल और कितनी साधना चाहिए उसको बर्न करने के लिए, और हमारे अंदर कितना पैशन है। अगर आपको लगता है कि मैं ध्यान करके मैं तो बोर हो गई जी, 2 हफ्ते में 3 बार कर लिया बहुत है, और भी तो काम करने हैं मुझे, तो आप अपने लिए क्या कर रहे हो। वो जो सीमेंट की बोरियां जमी हुई हैं, वो जमी हुई बोरियां सिंपल ध्यान से तो निकलेंगी भी नहीं। एक छेनी और ऊपर हथौड़ी, और उससे भी ज्यादा जमा हुआ है तो बड़ी बड़ी मशीनें आजकल तो इतनी, उनसे भी नहीं कटेगा। तो एक बिल्डिंग 300 गज की गिरानी हो, आप देखो कितनी मेहनत है उसमें। हमने तो ऊपर बड़े बड़े पहाड़ जमा करवाए हुए हैं। और हम किसी के पास जाते हैं, या मंदिर में गए या कहीं, मेरे पास तो ये प्रॉब्लम है, वो देखता है ऊपर इतना बड़ा पहाड़ है, अच्छा इतना टाइम लगेगा, इसका अपना एफर्ट क्या है, तो वो देखता है हाँ हाँ चला जाएगा। क्योंकि उसके पास और कोई वर्ड नहीं है, वो आपको समझा नहीं सकता, बेटा तेरा ये पहाड़ अगर मैं खोदने बैठा तो मेरे को ही 10 साल लग जाएंगे। तो वो क्या करेगा। इसीलिए वो कोई मास्टर, वो सभी ऐसे बोलते हैं, बहुत अच्छा आप ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। तो ध्यान करने वाले जो सबसे पहले 10,000 लोग होते हैं, अगले 4-5 साल में 5 उड़ जाते हैं, उड़ते जाते हैं, उड़ते जाते हैं। जैसे नर्सरी क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सेक्शन है। 10th में जाते जाते कितने रह जाते हैं, ग्रेजुएशन में कितने रह जाते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आप देख लीजिए, गिनती के रह जाते हैं। और रिसर्च में जाते हैं, वो तो आप उंगलियों पे गिन लो। तो हमारी जो भीड़ होती है, बड़े जो नर्सरी में तो भाग कर आते हैं सारे, लेकिन जब हमको काम करना पड़ता है ना, और काम करते करते हम कहते हैं, कितना ट्रोमा, ये भी कोई, चलो ये कभी निकलेगा भी, ये ऐसा भी होता है। भूल जाते हैं कि हमने जिस चीज को इकट्ठा करने में इतना जन्म लिया, उसमें हमको कितनी पेशेंस चाहिए, कितनी डिटर्मिनेशन चाहिए, और डिटर्मिनेशन के साथ कितना लव चाहिए। यहाँ पर हम सेल्फ लव बोलेंगे, तो सेल्फ लव क्या है। सेल्फ लव क्या हुआ, लोग सोचते हैं कि सेल्फ लव अपने आप को पैम्पर्ड किया, मेडिटेट किया। सेल्फ लव क्या है एक्चुअल में। सेल्फ लव है कि अपने ऊपर ये जो आप रोज बाल्टियां डालते जाते हो, एक के बाद एक के बाद एक, उसको डालना पहले बंद करो, और उसके बाद जो जमी हुई है उसको निकालो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान करके ये तो सीख लिया कि जो जमा हुआ है उसको निकालना है, लेकिन साथ के साथ दूसरे ऊपर भी डालते जाते हैं फ्रेश, कि कहीं कहीं से कोई कमी नहीं लगनी चाहिए मेरे जो मॉडल है ना। तो अभी जो मैंने पिक्चर बनाई कि एक सोल है, और उसके ऊपर इतना मलबा पड़ा हुआ है, और मलबे जम गया हुआ है, पूरा जम गया हुआ है, और उसमें अ, मधुमक्खियों के छक्के, वो जो पूरे छत्ते बने हुए हैं, और उसमें चूहे घूम रहे हैं, है ना, पेड़। तो ऐसा एनर्जी सिस्टम कैसा लगेगा देखकर। ऊपर से हम रोज सेंट एंड अच्छे अच्छे हम बोलते नहा के आए हैं, लेकिन एनर्जी सिस्टम कैसा है अंदर से, वो रोता हुआ, दुखी। और दुख
अगर आप किसी के सामने रोज आप किसी को शाम को 5-6 बजे फोन करो और उसको बताओ कि आप कितने दुखी हो, तो 5वें 6वें दिन आप बोलेंगे रोज इसका फोन आ जाता अपना दुख देने के लिए मेरे पास, इसके पास और कोई काम ही नहीं है, मेरी भी शाम खराब करके। थोड़ी सी जगह दे दो। कितने दिन नहीं, सुनेगा उसका दुख? आप थोड़ी सी नहीं जगह दे सुनोगे। दो माता जी। हाँ, होता है ना ऐसे। हम किसी का जी दुख भाई, भी ज्यादा जौहर देर नहीं आएगा ना। सुनते, हमको दो अरे तीन दिन बाथरूम अच्छा को लगता जाना है, था। हम इंजॉय करते हैं, हम हाँ। बोलते हैं बेचारा बहुत दुखी है, लेकिन उसके बाद हम उसका दुख भी सुनना बंद कर देते हैं। और अगर आप दुखी इंसान को 5-6 बजे जब वो अपनी कथा सुना रहा है, आप उसको बोलो बेटा तू ना ध्यान किया कर, तो बोलेगा अजीब बेवकूफ है, मैं इसको अपना दुख सुना रही हूँ और ये मेरे को कह रहा है आंखें बंद करके मुंह बंद करके बैठ जा, है ना। तो दुखी जो है वो मेडिटेट भी नहीं कर पाते। आप देखो, आप जब स्ट्रेस आउट हो तो आप ध्यान भी नहीं कर पाओगे, है ना। अगर आपके घर में साथ वाले कमरे में एक अच्छी फाइट चल रही हो, 2 मासी और एक बुआ बैठी हो, और आपको बोलो कि चलो भाई तुम यहाँ पे मेडिटेट करो, इनको लड़ने दो, आपका एक कान वहीं पर होगा। अपना अंदर तो इमोशन प्रोसेस नहीं हो रहा, लेकिन उन तीनों का जरूर आप प्रोसेस कर रहे होगे। आप बोलोगे देखो 1 घंटे के बाद उठती हूँ तो इनको बताती हूँ कि मैंने मेडिटेशन में सोच लिया किसको क्या क्या जवाब देना है। पूरा पार्टिसिपेशन वहां पर होगा। तो हम बैठे थे अपने इमोशन को प्रोसेस करने, लेकिन हम साथ वाले रूम वाले में ज्यादा हम प्रोसेस कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम ध्यान, जिसको हम ध्यान कहते हैं, सही मायनों वाला ध्यान, जब हमारे अंदर सचमुच हम कहते हैं कि हम ध्यानी हैं, सचमुच हम कहते हैं कि नहीं, इस लाइफ टाइम को तो बेकार नहीं करना, मेहनत करनी है। चाहे मैं 50 साल की हूँ, चाहे मैं 70 की हूँ, चाहे मैं 80 की हूँ, लेकिन जितने भी मेरा टाइम वक्त बचा है, मैं बहुत अच्छे से ध्यान करूंगी। ध्यान करने वाले कभी बोर नहीं होंगे। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये रोज 5 बजे जी जूम का खुल गया जी बैठना पड़ेगा। नो। ध्यान में जब आपको नशा, ये नशे की तरह है, जब ये नशा लगता है ना, फिर आप कोई एक दिन मिस नहीं कर पाओगे। बहुत सारे जन्मों में हमने बहुत सारे धर्म अपनाए, कभी जैन बने, कभी हिंदू बने, मुस्लिम बन के भी मजे लिए, बौद्ध बने, हर हर एक धर्म को एक्सपीरियंस किया हमने। और इस जन्म में आके हम फिर कोई ना कोई धर्म एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं तो अब हमें पता लगता है, जब हम अपनी पास्ट लाइफ देखते हैं, बहुत सारे धर्म के संस्कार, उनके बिलीव सिस्टम हमारे अंदर है, और उन्हीं का बोझ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बोझ क्या, बहुत अच्छी चीजें होती हैं, बहुत संस्कारों में जिसका कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन वो भी साथ में आ जाती है, वो भी अटैच होती रहती है, लाइफ टाइम लाइफ टाइम लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम। और हमारे जैसे जो जितने भी लोग साधना में आ रहे हैं, तो इनको तो सबसे ज्यादा, आप देखोगे अपनी पिछली लाइफ जितनी भी होगी, जितने लोग धर्म के गुरु थे, बड़े बड़े मास्टर से, उनको कितना सहना भी कितना पड़ा है। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बाकी कंट्रीज हो, उनको सबसे ज्यादा उनको दुख मिले हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं के हार्ट बंद है। और आज वो सब जब यहाँ पर आए हैं, सभी धर्मों से इकट्ठे होकर, तो मैक्सिमम जितने भी लाइट वर्कर्स या जितने भी लोग ध्यान में आ रहे हैं, उनके हार्ट सबसे ज्यादा पेनफुल है, सबसे ज्यादा दर्द उनमें भरा हुआ है, बंद किया हुआ है। लेकिन इतना कुछ ऊपर जमे होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनके अंदर की एक छोटी सी सेल से कॉलिंग आ रही है कि नहीं, तू लाइट है, तू आगे बढ़। एक होप, है ना। हजारों लाखों लोग हैं जिनके ऊपर बाल्टियां पड़ी हुई हैं, वो जमे हुए हैं, लेकिन आप इतने से लोग भाई, जो चाय ध्यान पिलाइयो के लिए आ रहे हैं और और एक पैटीज ध्यान खिला दे। की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देर इज ए रे ऑफ होप, वो सेल का स्पार्क, उस सेल की लाइट, है ना। हर एक सेल कम्युनिकेट करता है, एक सेल दूसरे सेल को बताता है। तो जिस सेल में अभी भी लाइट बची है, तो वो बताता है कि नहीं, देर इज होप, आप आगे बढ़ो, है ना। क्यों? क्योंकि ये मेरी जो हमारे कोश हैं, यहाँ पर हमारा ये जो हमारा कोश है, फिजिकल कोश है, मनोमय कोश है, हमारी एस्ट्रल कोश है, मनोमय कोश है, प्राण में कोश है, एंड आनंद में कोश है। जो सबसे ज्यादा आनंद में कोश है वो हमारा जो
कैंची नहीं रुकेगा। आत्मा, हमारी सोल जो हमारी प्योर लाइट से कनेक्टेड है, एक एक मैसेज आता रहता है हमारी फिजिकल बॉडी में कि नहीं, वी आर लाइट और हमें आगे बढ़ना है। इस जन्म में हमने बहुत कुछ करना है, ऊपर से हम संकल्प लेकर आए। नहीं, तो हाँ भाई। इसीलिए जब आपको कोई एक बोलता है कि स्टार्ट मेडिटेटिंग, तो आपका अंदर का वो जो लाइट है वो आपको बताता है। जैसे किसी ने आपकी आत्मा के ऊपर, पूरे हार्ट के ऊपर आपको पूरे प्यार से, जैसे माँ बताती है बच्चे को कि इट इज सेफ टू मेडिटेट, मेडिटेट करो, जो तुम्हारे ऊपर ये है तुमको इसको रिलीज करना है, तुम्हें फिर से वो प्योर बनना है ना, अपने पूरे डिवाइन एसेंस में आना है जो तुम थे। ऐसा नहीं है कि हम तो प्योर ही थे ना, अब वहां का रास्ता हमने, खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर दिए हुए हैं, वहां से हो दिखता ही नहीं है कुछ। एक छोटे से स्पार्क से हम यहाँ पर पहुंच गए। तो देखो कितनी पावर होगी जब हमारे मोर देन जो 75 ट्रिलियन सेल्स है ना, वो जब पूरा खुलेंगे, वो कैसी लाइट होगी, कैसा स्पार्क होगा वो। तो इतना स्पार्क हमारे अंदर है जो हम लेकर आए हैं। अब उस स्पार्क को कैसे हमने यूज करना है, ये हमारी साधना है। कैसे हमने अपना हार्ट खोलना है, कैसे इसको एक्सपेंड करना है, कैसे अपनी लाइट से कनेक्ट होना है, किसी दूसरे की लाइट नहीं, कोई बाहर की लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, अंदर की लाइट से कैसे कनेक्ट होना है। बाहर जितना मर्जी बड़े बड़े बल्ब लगे हों, जब तक आप अपने रूम की लाइट नहीं जलाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपके रूम में अंधेरा ही होगा। आप मेडिटेट करोगे, आप अपने रूम की लाइट बंद कर देते हो, अंधेरा हो गया। बाहर जो मर्जी है, आपको नहीं पता अंदर क्या है ना। अपने अंदर की स्विच ऑन किया तो लाइट चल गई। तो यहाँ पर हम ध्यान में, हम अपने इनर सेल्फ, अपनी अंदर की लाइट से कनेक्ट होंगे। तो जब तक हम स्विच ऑन नहीं करेंगे अपनी इनर सेल्फ की लाइट को, तो बाहर से सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो स्विच ऑन हमें करना है। तो आर वी रेडी? तो क्या है कि एक हमारा यस है और कई ने यस बोला, कईयों ने बोला, कईयों ने बोला, क्या उन्होंने बोल दिया तो, है ना। तो ये जो हमने जो यस बोला, ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड दिखाती है कि मेरा यस जो मैंने यहां से बोला यस, वो कहां तक गया। आप खुद देखना, जीभ से नीचे गया, दांतों से पीछे गया, लिप्स तक ही रह गया, यानी के बाकी सारे के सारे सेल वैसे के वैसे ही। आपने कोई मैसेज दिया, वो आपकी पूरी बॉडी में भी नहीं पहुंचा, टंग से भी नीचे नहीं उतरा, मैक्सिमम का हाफ टंग तक रह गया। तो ये हमारी विलिंगनेस होती है। तो जब मैंने बोला यस, चाहे आपकी आवाज बाहर से बेशक कम आई हो, लेकिन आपके अंदर की जो आवाज थी वो कम से कम ब्रेन न्यूरॉन्स किसी ऐसी जगह तो पहुंचती कि वो आगे मैसेज लेके पूरा जाता कोरियर की तरह, यस 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 यस, और यस 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 यस। तो यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेशन, यहाँ पर हमारा संकल्प आता है कि हम कितने पैशनेट हैं ध्यान करने के लिए। और जब मैं ध्यान कर रही हूँ तो मैं कितनी अटेंटिव हूँ। आधी चीजें तो सिर के ऊपर से ही चली जाएंगी, क्योंकि खाना भी बनाना है, बच्चों ने भी आना है, फोन भी आना है, जल्दी जल्दी उठना भी है, और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो ये हमारे में हम बच्चों को जरूर बोलते हैं कि बेटा जब पढ़ने लगे हो ना, बस आप ध्यान से पढ़ो। हम बच्चों के ऊपर बहुत, गाड़ी चलाते तो बोलते ध्यान से चलाओ, जब हम ध्यान करते तो हम कहते कोई बात नहीं, इट्स ओके। ध्यान को ध्यान से करने की क्या जरूरत है? सबसे ज्यादा जरूरत ध्यान को ध्यान से करने की जरूरत है। तो बी अटेंटिव। तो जब आप हम बोल रहे हैं संकल्प, तो कईयों का संकल्प होगा आई एम लव, आई एम लव। दूसरा बोलेगा उसने बोल दिया आई एम लव, ठीक है क्या बोलना है, जैसे उसको तो पता ही है आई एम लव। आपके किसी सेल के ऊपर इतना टन मलबा पड़ा है, उनको नहीं पता कि दे आर लव। अगर ऐसा होता तो फिर तो आप सबके सबकी लाइट ऐश शाइन कर रही होती, समुंदर बन गया होता, इतना प्यार हो क्या जाता हाल है जी? उससे। राम राम, ठीक हो? ठीक है। तो हम क्या करेंगे आज,
आज हम अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होंगे। हमारे अंदर का जो बल्ब है, हम हमेशा बाहर से कनेक्ट होते हैं, पहले अंदर का लाइट को आज हम स्विच ऑन करेंगे और अपने हर एक सेल को मैसेज देंगे। जो भी हम यहाँ पर बोलेंगे कि संकल्प लेना है, इंटेंशन डालनी है, मैसेज देना है, कोई भी वर्ड मैं उस वक्त बोल सकती हूँ, तो आपका जो चाहे मुंह बंद है और आंखें भी बंद है, लेकिन वो जो आपका मैसेज है ना, वो क्लास की टीचर की तरह जो हाथ में डंडा लेकर घूम रही होती है और वेरी स्ट्रिक्ट, वो डिसिप्लिन, एक एक सेल को मैसेज दे रही है टेबल पर खड़का के, यू आर लाइट। तो वो जो मैसेज है वो आपके सारे सेल्स को पहुंचना चाहिए। पूरे दिमाग की बत्ती आज ऑन होनी चाहिए, है ना, हर जगह लाइट होना चाहिए। तो आज हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जब अपनी आंखें बंद करेंगे तो एक मैसेज देना है और आपने खुद देखना है कि वो आपका मैसेज यहाँ से कहाँ कहाँ तक गया। बैक में भी जाना चाहिए, बोन्स में भी जाना चाहिए, जहां जहां पेन है वहां भी जाना चाहिए, लेग्स में, नीज में, कहीं भी। लेकिन वो मैसेज, आपकी आंखें बंद और मुंह भी बंद, और आप देखिए क्या वो मैसेज, समझ लीजिए जैसे आप स्पीच दे रहे हो लाल किले पर खड़े होकर, लेकिन आपका आगे ना माइक है और आपका मुंह भी बंद है, आंखें भी बंद है, और जो आपकी पब्लिक, वो मोर देन 80 ट्रिलियन सेल्स हैं आपके अंदर है। और आप कैसे मैसेज देंगे, राइट? तो पहला हम जो मैसेज देंगे बड़ी जोर से, तो हम जब भी कोई मैसेज देंगे तो सबसे पहले अपने हार्ट को मैसेज देंगे, मेरे हार्ट अब तुम खुल जाओ, आई ओपन माई हार्ट, या आई चूज टू ओपन माई हार्ट, या कमांड दो उसको, किसी भी तरीके से कम्युनिकेट विथ योर हार्ट। आपकी आईज भी बंद, आपका मुंह भी बंद, आंखें भी बंद, एंड कमांड, और देखिए अपने हार्ट को कमांड देकर। कमांड देते जाना है, क्योंकि सुनता नहीं इतनी जल्दी ना, बहुत ट्रॉमा और पेन इकट्ठा किया है, और उसको बड़े प्यार से समझाकर आई चूज टू ओपन माई हार्ट, और अपने हार्ट को खुलता हुआ देखना है। जैसे एक लोटस था, उसकी पेटल बेचारी एक मुरझाई पड़ी है, एक है ही नहीं, एक झुक के नीचे बैठ गई है, एक ऊपर कीचड़ से भरी है। आज सारे, जैसे वो आपकी आवाज सुनते ही ना, जैसे उसमें बाहर आ गया, पूरा फूल जैसे खिलने लग गया। तो कमांड दीजिए अपने हार्ट सेंटर को कि आई चूज टू ओपन माई हार्ट, मेरा हार्ट खुल रहा है। Mickey ji, do you need the music, please? यस, आपको जी जी, सचिन, सचिन, put the music on, बेटा। बहुत लाइट। एक अभिमन्यु जी का माइक ऑन है, तो उसका भी माइक बंद कीजिए ना। या उनका आवाज बहुत ही आता है। उनका माइक ऑन है और उनको अवेयर नहीं है। सचिन जी बंद कर सकते हैं, हाँ सचिन सचिन, जी बंद कर सकते हैं, या दीदी आप बंद कर दीजिए, आपको होस्ट है ना। हाँ, you can do that. आराम से बदते, अपने हार्ट पर हाथ रख सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि अब आपको खुलना है, ठीक है। और प्रिया देखिए दीदी आपका आप ही मैसेज, म्यूजिक दे दीजिए, शायद सचिन नहीं है। आराम से बदतो, मैंने अभी सचिन से बात किया है, म्यूजिक ऑन होता है, जस्ट गिव कपल ऑफ मिनट्स। और जैसे जैसे आप अपने हार्ट को कमांड दे रहे हो, आपके हार्ट का जो लोटस है, वो जो कमल का फूल है,
वो खुलने लगा है, बड़े प्यार के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ। I choose to open my heart. आपका हार्ट खुलता हुआ बहुत पेन बाहर आ सकता है। इट्स ओके, इट्स फाइन। So I'm holding space for everyone. सबके लिए। It is safe. It is safe to open your heart. मैं एक सेक्रेट ज्योमेट्री का निर्माण करूंगी, तब तक आपने अपने हार्ट को कमांड देते हुए इसको खुलते हुए देखना है, खोलना है। और जैसे जैसे आप अपने हार्ट को कमांड देंगे, आप अपने इनर सेल्फ से, आपकी अपनी लाइट से कनेक्ट होते जाओगे। हम अपने इनर सेल्फ, अपनी लाइट से, अपने प्रकाश से कनेक्ट होंगे आज, जो हमारे भीतर है। ओम त्रमतितोम शाह। तो अभी जो मैं लैंग्वेज बोल रही हूँ, वो इसको हम लैंग्वेज ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश की भाषा। ये आपके सेल्स को, आपके डीएनए को समझ में आती है। ओम त्रमा शाह। लेकिन जब तक आप अपना दरवाजा नहीं खोलेंगे, आप कमांड नहीं दोगे, तो आपका दरवाजा नहीं खुलेगा। सो कीप ऑन कमांडिंग। अरम त्रमतितोम शाह, creating a sacred grid for every single participant in individual grid, एक individual grid और एक collective grid का निर्माण करते हुए, for every single participant, and everyone is releasing through their own portal a sacred grid. The guides of supreme consciousness, the guardian angels of supreme consciousness, supportive energies of supreme consciousness, surrounding the space, holding the space. For every single participant, ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियां, ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय ऊर्जाएं टोटली अलाइंड विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस। For the highest best of every single participant, for the highest good of every single participant. और साथ ही साथ आह्वान करते हैं वायलेट लाइट ऑफ ट्रांसम्यूटेशन का, जो लगातार हर पार्टिसिपेंट के ग्रिड में नॉन स्टॉप बहती रहे पूरे ध्यान सत्र के दौरान, जो आप सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे इस रिकॉर्डिंग को। तो देयर इज नो टाइम, नो स्पेस, सीमा मततोम, नो डिस्टेंस। Ultraviolet light of transmutation flowing inside this grid, around this grid, within every single participant. आपने आह्वान भी करना है कि I call forth violet light of transmutation to keep on flowing inside my energy system non-stop. Violet light हमारे भीतर non-stop बहती रहे, और जो भी हम रिलीज कर रहे हैं वो ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होता रहे। तो आप जो भी एफर्मेशन देंगे, जो भी संकल्प लेंगे, वो आपके पूरे सेल्स को समझ में आना चाहिए। तो वायलेट लाइट का जब हम आह्वान कर रहे हैं, द प्योरेस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टू कीप ऑन फ्लोइंग इनसाइड द एनर्जी सिस्टम, तो आपने भी रिपीट करना है कि मैं वायलेट लाइट का आह्वान करती हूँ अपने एनर्जी सेंटर में, अपने हर सेल में, अपने हर एटम में, अपने हर एक मॉलिक्यूल में, हर एक वाइटल ऑर्गन में, हर एक मेजर माइनर चक्रा सिस्टम में, हर एक कण में, जो नॉन स्टॉप 24 घंटे 7 दिन बहती रहे।
और मेरे भीतर जो भी ऊर्जाएं रिलीज हो रही हैं वो ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होती जा रही हैं। अपने हार्ट को एक बार फिर कमांड देते हुए कि अब उसको थोड़ा और खुलना है, और अच्छे से खुलता हुआ देखना है। आई चूज टू ओपन माई हार्ट। जैसे आपने अपने इनर की जो लाइट है, जो रोशनी है, उसको आपने स्विच ऑन कर दिया। आपका हार्ट आपके इनर सेल्फ के साथ प्लग इन हो चुका है। प्लग इन, प्लग इन, प्लग इन। जैसे हार्ट, जैसे ही आपने प्लग इन किया और आपका हार्ट एकदम रोशनी से भर गया। डरना नहीं है। इट्स ओके, इट इज सेफ, इट इज सेफ, इट इज सेफ टू ओपन। वक्त आ गया है एक्नॉलेज करने का जो आसपास क्लटर है, गंदगी है। जन्मों जन्मों से हमने स्विच ऑन नहीं किया था, लेकिन आज हम तैयार हैं अपने अंदर की सफाई करने के लिए। जैसे डर्टी लैंप्स अच्छी तरह से शाइन नहीं करते, जिन लैंप्स के ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है वो प्लग इन होने के बाद भी शाइन नहीं करते, तो आज हम अपने लैंप को, अपने हार्ट को साफ करेंगे ताकि वो बहुत ब्राइटली शाइन कर पाए। तो चाहे प्लग इन हो गया और लाइट अभी डिम है तो भी चिंता नहीं करनी। आपका संकल्प जरूरी है अपने लैंप्स को साफ करने के लिए। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती जा रही है, हम इनर सेल्फ से कनेक्ट होते जा रहे हैं। हमारे हार्ट से एनर्जी नीचे की ओर बहती हुई, हमारी लेग से होती हुई, पैरों की सोल से होती हुई, अस्टार चक्रा से होती हुई, डीप डीप हमारे प्रकाश जो है, इनर सेल्फ का जो प्रकाश है, नीचे 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 लाइट की स्पीड से नीचे की ओर जाता हुआ तेजी से, और धरती माँ के सेंटर, वो क्रिस्टलाइन ग्रिड है जो 5th डायमेंशन का ग्रिड है, उसके साथ उसकी जड़ें फैलती हुई पूरे क्रिस्टलाइन ग्रिड तक पहुंचती हुई ये प्रकाश, और ये पैरों की सोल से जो जड़ें निकलकर नीचे की ओर गई हैं हमको ग्राउंड करने के लिए, ताकि ध्यान के वक्त हम ग्राउंडेड रहे। तो हमारे हृदय चक्र से जो प्रकाश नीचे की ओर जा रहा था और पैरों की सोल से जो जड़ें नीचे जा रही थी, सेंटर, बिल्कुल धरती माँ के सेंटर तक जैसे ही पहुंचती है तो अपने चॉइस के 3 क्रिस्टल, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, एमेथिस्ट क्रिस्टल, ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल आप अपनी जड़ों के साथ बांध कर रख सकते हो, और धरती माँ के कोर से एनर्जी ऊपर की ओर आती हुई, साथ ही साथ उन क्रिस्टल्स की ऊर्जा भी आती हुई धरती से बाहर निकलकर आपके अस्टार चक्रा से होती हुई, पैरों की सोल से होती हुई, आप लेग से होती हुई, थाई से होती हुई, पूरे रूट चक्र, मूलाधार चक्र में फैलती हुई, यहाँ पर भी प्लग इन होता हुआ लाइट बढ़ती हुई, जैसे आपकी इनर लाइट थी और अब धरती माँ की लाइट भी आपके अंदर मिक्स और मर्ज होती हुई, पूरे सैक्रल में फैलती हुई, सोलर प्लेक्सस में फैलती हुई, मणिपुर चक्र से होती हुई, हार्ट सेंटर में फैलती हुई। यहाँ पर आपकी इनर लाइट का स्विच पहले ही जला हुआ था। आपके भीतर की लाइट और धरती माँ की लाइट मिक्स और मर्ज होती हुई यहाँ पर। एवरीवन रिलीजिंग थ्रू देयर ओन पोर्टल। आपने बोलना है, हम अपने अपने पोर्टल से अपनी ऊर्जा को रिलीज कर रहे हैं
without contaminating any other energy system. हार्ट से लाइट अब ऊपर की ओर जाती हुई, आपके गले के चक्र से होती हुई, आपके पूरे फेस में फैलती हुई, पूरे क्राउन में फैलती हुई, शोल्डर्स में, आपके कंधों में, आपकी बाजुओं में, और क्राउन चक्र से ये लाइट आप यूनिवर्सल हार्ट सेंटर ऑफ द क्रिएटर की ओर बढ़ती हुई, यूनिवर्सल हार्ट सेंटर ऑफ द क्रिएटर के साथ प्लग इन होता हुआ ये हमारा ग्रिड आज हम हार्ट चक्र से कनेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सल हार्ट सेंटर ऑफ द क्रिएटर परमात्मा के हृदय चक्र से कनेक्ट करते हुए, और जैसे ही प्लग इन हुआ है, डीपली प्लग इन, यूनिवर्सल हार्ट सेंटर से एनर्जी नीचे की ओर आती हुई, हमारे क्राउन चक्र से हमारे शरीर में प्रवेश करती हुई, हमारे चेहरे पे फैलती हुई, रोशनी का सैलाब, रोशनी का समंदर पूरे एनर्जी सिस्टम में फैलता हुआ, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक। I choose to open my heart. अब आपको पता है मुझे ये इंटेंशन कैसे डालनी है। I choose to open my heart. हर एक सेल को, हर एक एटम को, हर एक मॉलिक्यूल को ये मैसेज देना है। ये प्रकाश धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडीज में फैलता हुआ, पूरे एनर्जी चैनल्स में फैलता हुआ, आपके पूरे कोशों में फैलता हुआ, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडीज में फैलता हुआ, आपके पांचों कोश अलाइनमेंट में आते हुए, ये प्रकाश हर एक एटम मॉलिक्यूल में ट्रेवल करता हुआ, और जैसे जैसे डीपली कनेक्ट हो रहे हैं हम यूनिवर्सल हार्ट सेंटर ऑफ द क्रिएटर से और 5D क्रिस्टलिन कोर ऑफ मदर अर्थ से, हमारे अंदर प्रकाश का एक पिलर बनता हुआ, एक पिलर ऑफ लाइट हमारे अंदर बनता हुआ, जो कि हमारे इनर सेल्फ से भी कनेक्टेड है। हमारे हार्ट का प्रकाश पिलर ऑफ लाइट में मिक्स और मर्ज होता हुआ, और हमारा हार्ट और ज्यादा शाइन करता हुआ, ब्राइट शाइन। जैसे जैसे हमारा हार्ट शाइन करने लगा है, वो एक्सपेंड होने लगा है, बढ़ने लगा है साइज में, और उसका प्रकाश भी ब्राइटर होता जा रहा है। अपने हार्ट के प्रकाश को 10,000 टाइम ब्राइटर होते हुए और उसके साइज को भी बढ़ते हुए देखना है। यू आर द क्रिएटर। आप जैसा इंटेंशन डालोगे, जैसा मैसेज दोगे, वही होगा। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जा रहा है, आपके भीतर सभी सेल वाइब्रेट करने लगे हैं और आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी है। और जैसे जैसे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी है, हार्ट का जो साइज है वो भी बढ़ने लगा है, उसका आकार बढ़ने लगा है, और वो फिजिकल बाउंड्री से पार आता हुआ वो हार्ट, खुशी से झूमता हुआ हार्ट, इनर सेल्फ से टोटली कनेक्ट होता हुआ
अपने भीतर की लाइट से, आपके भीतर की सोल की ऊर्जा टोटली कनेक्ट। अरम त्रमा शम। हार्ट का साइज और बढ़ता हुआ, और बढ़ता हुआ, 5 कोशों से क्रॉस करता हुआ, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडीज को भी लांघता हुआ। जैसे आप प्रकाश का गोला बनते जा रहे हो। स्ट्रॉन्ग पोर्टल आप सबके चारों ओर बनता हुआ। अरम त्रमा शाह। Whatever you are releasing through their own portals। और वायलेट लाइट ऑफ ट्रांसम्यूटेशन लगातार बढ़ती हुई इस ग्रुप में, इस ग्रिड में, इंडिविजुअल ग्रिड में, कलेक्टिव ग्रिड में। और आपका हार्ट का जो लाइट है, जो कि इनर सेल्फ से कनेक्टेड है, जो धरती माँ के ग्रिड से कनेक्टेड है, जो यूनिवर्सल हार्ट सेंटर ऑफ द क्रिएटर की ऊर्जा से भी प्लग इन है, अब ये प्रकाश फैलता जा रहा है। आप जहां बैठे हुए हो, पूरे रूम में आपके हार्ट का प्रकाश फैल चुका है। आपका पूरा सेक्रेट स्पेस उस प्रकाश से भर चुका है। और धीरे धीरे ये प्रकाश आपके पूरे घर की बाउंड्री से भी फैलता जा रहा है। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई, फिर एक इंटेंशन अपने हार्ट में देनी है। इट इज सेफ टू रिलीज द ट्रॉमा। ट्रॉमा रिलीज करना सेफ है और सही है, अच्छा है। जन्मों जन्मों से बहुत ज्यादा बिट्रेल मिला, धोखे मिले, नफरत मिली, अकेला छोड़ दिया आपको, आपके प्यार ने आपको धोखा दे दिया, माँ बाप ने धोखा दे दिया, सगे संबंधियों ने धोखा दे दिया। वो प्यार नहीं मिला और आप तलाशते रह गए। जिस पर विश्वास किया उसी ने धोखा दे दिया। जिसकी वजह से आपने अपनी इनर लाइट को ही बंद कर लिया था। लेकिन आज हम एक बार फिर से वो डेयर करते हुए, बहादुरी से अपनी इनर लाइट से कनेक्ट होते हुए, ऑन करते हुए उस स्विच को और प्लग इन डीपली करते हुए, जैसे एक गंदे से कमरे में प्रकाश के आते ही आपको हर जगह वो ऊर्जा जो जमी हुई है दिखने लगी है। इट इज सेफ, इट इज सेफ। वक्त आ गया है अपनी ही रोशनी से, अपनी ही पावर से अपने हार्ट को क्लियर करने का, क्लीन करने का, सफाई करनी है आज। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जा रहा है, जो डर है, जो धोखा खाने के बाद आप डर गए, आप किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाते, खुद पर भी विश्वास करना भूल गए, अपनी इंट्यूशन से कट ऑफ हो गए, अपना वैलिडेशन भी आप दूसरे से पूछते हो, मैं सही कर रही हूं ना, मैं सच बोल रही हूं ना, मैं ठीक हूं ना। वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। आज आप अपने इस प्रकाश में सब कुछ देख पाएंगे। कमांड योर 75 ट्रिलियन सेल्स, एक एक सेल, मोर देन 75 ट्रिलियन सेल्स कमांड करते हुए, ये जो रोशनी है आपके हार्ट की, जो आज आपने प्लग इन किया है,
पूरे एनर्जी सेंटर्स में फैलता हुआ ये प्रकाश। और एक बार फिर कमांड देते हुए, आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग हीलिंग। ये कमांड जितनी ज्यादा आप इंटेंस दोगे, उतनी ज्यादा हीलिंग का प्रोसेस आपके अंदर एक्टिवेट होगा। आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग हीलिंग, आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग लव। दोनों कमांड एक साथ, आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग हीलिंग, आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग लव। आपका संकल्प और आपका डिटर्मिनेशन, आपकी इच्छा शक्ति जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा मैसेज आप दे पाएंगे अपने हर सेल को, अपने हर एटम को। आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग हीलिंग। ना आपके मुंह से आवाज आएगी, आंखें बंद रहेंगी, लेकिन आपका मैसेज जो है पूरे एनर्जी सेंटर और चैनल में ट्रेवल करता हुआ। पुराने टाइम में जैसे मुनादी होती थी, तो आप अपने अंदर ही मुनादी कर रहे हो, आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग लव, आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग हीलिंग। और जैसे जैसे आपका जो संकल्प है वो बढ़ रहा है, जो आपकी लाइट है, यूनिवर्सल हार्ट सेंटर से लाइट जो आ रही है वो फास्ट हो गई है, उसका फ्लो बढ़ने लगा है, क्योंकि आपका संकल्प बढ़ने लगा है, आपकी इनर लाइट बढ़ने लगी है, आपका मैसेज दूर दूर तक जाने लगा है। जो भी आप रिलीज कर रहे हो, ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होता हुआ I am worthy of receiving love, I am worthy of receiving healing। मैं अधिकारी हूँ प्रेम का और प्रकाश की ऊर्जाओं का, मैं अधिकारी हूँ, मैं वर्दी हूँ हील होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए। Because I am love। बाहर से मिले धोखे की वजह से हमने अपना ही हार्ट बंद कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, अपनी लाइट को डिम कर दिया और बुझा दिया, और हमें लगा ये अंधेरा ही अंतिम सत्य है। लेकिन आज हम अपनी लाइट से जुड़ते हुए, और जैसे ही हम अपनी लाइट से कनेक्ट हुए, पूरा ब्रह्मांड हमें सपोर्ट करने के लिए दौड़ पड़ा। सभी कोशों में ये ऊर्जा ट्रेवल करती हुई फिजिकल बॉडी में सभी कोशों में ये लाइट ट्रेवल करती हुई, हर एक कोश में एंटर करती हुई, हार्ट में जमा हुआ जो वो पेन है मेल्ट होने लगा है। आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग लव, आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग हीलिंग। आपका हार्ट एक्सपेंड होने लगा है, कोश बैलेंस होने लगे हैं, जिसकी वजह से आपके ओन सोल की लाइट आपकी फिजिकल बॉडी तक पहुंचने लगी है। लाइट फ्रॉम योर ओन सोल starts to illuminate your heart center। आपके अंदर इतनी लाइट है, आपके अपने सोल की लाइट,
जगमगाती हुई सभी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को, और जिस स्पेस पर आप रह रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूरा स्पेस लाइट से भर चुका है। आपकी अपनी इनर सेल्फ की लाइट, अपने सोल की लाइट आपको इल्यूमिनेट करती हुई, जैसे दिवाली पर हजारों हजारों दीपकों का प्रकाश पूरे वातावरण को इल्यूमिनेट कर देता है, आसपास को पूरी तरह से जगमगा देता है। आज आपके पूरे सेल्स इस लाइट में इल्यूमिनेट होते हुए, जगमगाते हुए, जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जा रहा है, पूरे ब्रह्मांड का सपोर्ट भी हमें मिलने लगा है। आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग लव, आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग हीलिंग। कीप ऑन रिपीटिंग। जैसे जैसे आपका संकल्प बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी लाइट भी बढ़ती जाएगी। हर एक सेल में कीप ऑन रिपीटिंग मिनिमम 21 टाइम। और हर बार जब आप रिपीट करोगे तो आपका हार्ट की लाइट भी बढ़ने लगेगी, और जो जमी हुई एनर्जीज है, जो ट्रॉमा, जो पेन, जो बिट्रेयल, जो अबैंडनमेंट, जो हेट स्टोर है सेल्स में, वो भी डिसॉल्व होने लगेगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगेंगे, वो बेड़ियां खुद ब खुद कटने लगेगी। जैसे जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो बेड़ियां कटने लगी थी, दरवाजे खुलने लगे थे, प्रकाश फैलने लगा था, अंधेरा गायब हो गया था। आज आपके भीतर भी कृष्ण का जन्म होता हुआ, प्रकाश फैलता हुआ, वो जो बेड़ियां थी वो खुद ब खुद कट रही हैं, दरवाजे थे वो लोहे के, वो खुद ब खुद खुलने लगे, प्रकाश खुद ब खुद रास्ता दिखाने लगा। प्रकाश बढ़ता जा रहा है, वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है, हर एक सेल वाइब्रेट करता हुआ, खुशी से झूमता हुआ। आपकी जो इनर सेल्फ की लाइट है इल्यूमिनेट होती हुई, धरती माँ से ऊर्जा और यूनिवर्सल हार्ट सेंटर से ऊर्जा नॉन स्टॉप बहती हुई, सभी पांचों कोशों में प्रकाश फैलता हुआ। जो कुछ छूट रहा है वो ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म हो रहा है। प्रेम और प्रकाश की ये ऊर्जा आपके हार्ट को एक्सपेंड करती हुई, बेड़ियों को काटती हुई, दरवाजों को खोलती हुई, नया जन्म होता हुआ आपका। और जैसे जैसे आपका प्रकाश बढ़ता जा रहा है, हम आह्वान कर रहे हैं ब्रह्मांड से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के, बहुत ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के और हाईएस्ट डायमेंशन से एक पिंक पिरामिड का आह्वान करते हैं, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, जो ब्रह्मांड से होता हुआ नीचे की ओर आता हुआ और आपके क्राउन चक्र के ऊपर उल्टा, उसकी टिप आपके क्राउन की तरफ, उसका बेस यूनिवर्स की तरफ स्पिन करता हुआ क्लॉकवाइज, बहुत ह्यूज स्पिन करता हुआ, उसकी टिप ओपन होती हुई, और जैसे ही उसकी टिप ओपन हुई है, पिंक लाइट
ऑफ लव एंड कंपैशन आपके क्राउन से होती हुई आपके पूरे एनर्जी सेंटर्स में, एनर्जी चैनल्स में प्रवेश करती हुई नॉन स्टॉप ये पिंक कलर का बहुत ह्यूज पिरामिड, पिंक लाइट, जैसे ही ये पिंक लाइट वाला पिरामिड आपके एनर्जी सेंटर्स में पिंक लाइट को चैनल कर रहा है, आपका हार्ट और ज्यादा खुलता हुआ, सेल्स खुलते हुए, खुशी से झूमते हुए, डांस करते हुए, वाइब्रेट करते हुए पिंक पिरामिड एक जीवित कॉन्शियसनेस जिसमें जैसे वो भी मुस्कुरा रहा है और पिंक कलर की लाइट समुंदर, एक झरना पूरी एनर्जी सेंटर्स में प्रवेश करती हुई और जैसे ही ये पिंक कलर की ऊर्जा आपके भीतर फैल रही है, आपका हार्ट सॉफ्ट होता हुआ पूरे पेटल्स हार्ट के खुलते हुए टोटली सेफ, जैसे माँ की गोद में बच्चा इतना सेफ फील करता है, कितना उसे आनंद की अनुभूति होती है, सच्चे प्रेम की अनुभूति होती है। आज वही अनुभूति आपके अंदर पिरामिड एकदम स्पिन करता हुआ सिकाम सिम्मतते इसकी स्पीड को बढ़ाते हुए तमा तो सिम्मतते अष्टा अरकतततततति सिम्मतते ओम शा। प्रकाश बढ़ता हुआ, पिरामिड स्पिन करता हुआ, प्रकाश आपके भीतर फैलता हुआ, आपकी इनर सेल्फ की लाइट बढ़ती हुई, क्योंकि और डीपली प्लग इन होता हुआ आपकी इनर सेल्फ से ये ग्रिड, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना का स्तर उठता हुआ, जितना ट्रॉमा, जितना पेन, जितने धोखे इकट्ठे किए थे सब डिसॉल्व होते हुए वो जो लैंप था आपका हार्ट का, वो जो पेटल थे जिसमें धूल मिट्टी जमी थी, वो भी डिसॉल्व होती हुई और ज्यादा शाइन करता हुआ हार्ट, और ज्यादा विश्वास, और ज्यादा प्रेम, और ज्यादा सुरक्षित फील करते हुए और चिल्लाते हुए, जैसे आपका एक एक सेल चिल्ला रहा है, आई एम लव, आई एम लव, आई एम लव, आई एम लाइट, आई एम लाइट, आई एम लाइट, पूरी बॉडी में ये मैसेज देते हुए जैसे जैसे मैसेज फैलता जा रहा है पूरी बॉडी सिस्टम में, सेल्स में, मसल्स में, टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, एक एक सेल में और डीप प्लग इन होते हुए अपनी ही लाइट से शाइन करता हुआ आपका हार्ट, और जैसे ही आपके ने प्लग इन किया धरती माँ की ऊर्जा, यूनिवर्सल हार्ट सेंटर से ऊर्जा, पिरामिड की ऊर्जा नॉन स्टॉप बह रही है। आपका पूरे एनर्जी सेंटर पिंक लाइट में कन्वर्ट होते हुए प्रेम, प्रकाश और करुणा की ऊर्जा, खुद को क्षमा करते हुए सभी को क्षमा देते हुए और सभी से क्षमा मांगते हुए भी
शमततततततोम सिममतततततततोम सिक्कततोम शह। खुद के प्रति प्रेम रखते हुए, सभी के लिए प्रेम का भाव रखते हुए, जैसे जैसे आप क्षमा मांगते जा रहे हो, क्षमा देते जा रहे हो, खुद के लिए भी प्रेम का भाव रख रहे हो, जो पिरामिड की ऊर्जा है नॉन स्टॉप आपके एनर्जी चैनल्स में फैलती जा रही है, एक लावे की तरह, एक टॉर्नेडो की तरह पूरे एनर्जी सेंटर में और आपके चारों ओर, जैसे पूरा का पूरा कमरा ही पिंक लाइट में कन्वर्ट हो चुका है। इतना सुंदर, इतना भव्य दृश्य जिसमें बहुत सारी कॉस्मिक बटरफ्लाईज, पिंक कलर के ड्रैगन्स, फेरीज एंड पिक्सीज, आपके डीएनए पर बैठती हुई, एक्सपेंड करती हुई एनर्जी को पूरा ब्रह्मांड इस वक्त आपको सपोर्ट करने लगा है, क्योंकि आपकी अपनी लाइट पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। एक होते जा रहे हो आप। पिंक पिरामिड नॉन स्टॉप स्पिन करता हुआ पिंक बटरफ्लाईज, पिंक ड्रैगन्स लगातार ऊर्जा को ट्रांसमिट करते हुए आपके एनर्जी सेंटर्स में, आपके एनर्जी चैनल्स में डिसॉल्व करते हुए उन ट्रॉमा को, उन पेन को। आपका वाइब्रेशन दूर दूर तक फैलता हुआ, रोशनी के समंदर में आप नहाते हुए, ये जो पिरामिड है धीरे 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 श्रिंक होता हुआ अपना स्पीड कम करता हुआ, ओम त्रमतिति आहास्तोम, श्रिंक होता हुआ, स्पीड को कम करता हुआ, शका तुम ओम शाह, और धीरे धीरे आपके क्राउन चक्र से आपके शरीर में प्रवेश करता हुआ, क्राउन चक्र से थर्ड आई से होता हुआ, थ्रोट से होता हुआ आपके हृदय चक्र में स्पिन करता हुआ, और यहीं पर डिसॉल्व होता हुआ। एक बार फिर से ऊर्जाओं का विस्फोट होता हुआ आपके हार्ट में, पूरा हार्ट सेंटर खुलता हुआ, शाइन करता हुआ, वो पिंक कलर की बटरफ्लाईज स्माइल करती हुई लगातार आपको अपनी एनर्जी चैनल करती हुई, ये कॉस्मिक बटरफ्लाईज आपको हील करने के लिए आई हैं। ये पिंक ड्रैगन्स लगातार प्रेम और करुणा की ऊर्जा को एक्सपेंड करते हुए, आपको हेल्प करते हुए, उन ट्रॉमास को डिसॉल्व करते हुए जिनकी वजह से आपने अपने हार्ट को बंद कर लिया था। लेकिन आज हम यूनिवर्सल हार्ट सेंटर ऑफ द क्रिएटर से, अपनी लाइट से और मदर काया की एनर्जी से टोटली कनेक्ट होते हुए
ये कनेक्शन 24 घंटे 7 दिन साल के 365 दिन बना रहेगा। हमारे 5 कोशों में ऊर्जा बहती रहेगी, उनमें अलाइनमेंट रहेगा। हमारे सभी चक्र टोटली अलाइनमेंट में आते हुए प्रकाश बढ़ता जा रहा है, सेल वाइब्रेट करते जा रहे हैं। ये आनंद की स्थिति जो हमारे भीतर अब है, तो 24 घंटे 7 दिन साल के 365 दिन रहेगी और हर दिन बढ़ती ही जाएगी हमारे संकल्प की शक्ति के साथ, हमारे प्रेम के भाव के साथ। आज हम अपनी ही लाइट से, अपनी ही सोल की लाइट से कनेक्ट हुए हैं। मन में फॉरगिवनेस का भाव बढ़ता जा रहा है, क्षमा का भाव बढ़ता जा रहा है, प्रेम का भाव बढ़ता जा रहा है, करुणा का भाव बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे हमारे अंदर फॉरगिवनेस का भाव बढ़ रहा है, हमारी इनर लाइट और शाइन होती जा रही है। हमारे जो लैंप है साफ होता जा रहा है, वो जो हार्ट के पेटल है ये क्लीन होते जा रहे हैं और ये शाइनिंग ब्राइट ब्राइट शाइन कर रहे हैं और उनकी शाइन हर दिन बढ़ती जाएगी। और ये प्रोसेस नॉन स्टॉप रहेगा, चलता रहेगा 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, and so be it. It is done. It is done. It is done. मुस्कुराते हुए प्रेम के भाव के साथ सभी ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को, ऊर्जाओं को धन्यवाद करते हुए, आभार प्रकट करते हुए अपने इनर सेल्फ का, धरती माँ का, अपने हृदय चक्र का, अपनी सोल फैमिली का, इन क्षणों का मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी में वापस आए। शा अस्तु सिम्मतते अस्तु शा। Thank you, Masters. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू। मुझे लगता है सब इसी स्पेस पे रहना चाहेंगे। डीप डीप ग्रेटिट्यूड प्रभु, थैंक यू। अलग सी दुनिया में शेयर करने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you for giving us this experience. Thank you. Thank you so much. थैंक यू मिकी जी। Thank you. Thank you so much. बहुत ही डीप था, बहुत ही डीप था। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you. Thank you so much. बाहर आना पड़ा एक्चुअली, तो मन नहीं चाहता था।
जी। आप दूसरी Thank लैंग्वेज you जो so बोलते much, थे ma'am. वो कौन सी लैंग्वेज थी? लाइट इसको हम लाइट लैंग्वेज बोलते हैं। इसे ये लाइट लैंग्वेज हमारी सोल की भाषा है, जो सभी को समझ में को आती है, सबके सेल्स, सबके डीएनए को समझ में आती है। तो जब हम ये भाषा बोलते हैं तो वो आपके डीएनए से कम्युनिकेट करती है, बातचीत करती है। तो जो दरवाजे उसने बंद कर रखे होते हैं तो उसे खोलने के लिए कहते हैं। तो जब हम सोल लेवल पर एक दूसरे से बात करते हैं ना, जैसे आप हमारे सामने एक तो अपनी भाषा में बात कर रहे थे पहले, और जी। उसके बाद जब आए तो हम ना, तो यस दूसरी भाषा में, तो इसी तरह वो हमारे सेल्स की भाषा है, लाइट की भाषा, जो उन्हें समझ में आती है। जी। थैंक यू माँ। थैंक यू सो मच। दीदी थैंक यू, थैंक यू, ये थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you so much. ओके, ये ओके जी। मदर अर्थ का आपने क्या बताया था, जहाँ से हमने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल और एमेथिस्ट लिया था, गया, वो सेंटर क्या है? मैंने पहली वो बार वो नाम 5D जो मदर अर्थ का जो सेंटर है, जहां से 5D ग्रिड कनेक्ट है। हम नई अर्थ के 5D ग्रिड से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जहां पर ओरिजिनल प्रेम और प्रकाश की एनर्जी है। तो हमने अपने आप को, अपनी जड़ों को उसके साथ बांध दिया, और उसके ऊपर क्रिस्टल्स भी रख दिए कि वो परमानेंटली वहां पर बंधे रहे। तो आप रोज कर सकते हैं, जब भी आप देखो कि मेरे जो पैरों से, मेरे हार्ट का जो लाइट है वो नीचे जा रहा है, और पैरों की सोल से जड़ें, गोल्डन कलर की जड़ें नीचे की ओर जा रही हैं, जब वो सेंटर में पहुंचती हैं तो आपने वो बांध देना है वहीं पर अच्छी तरह से, और ऊपर 3 क्रिस्टल रख देने हैं। क्योंकि जब हम ध्यान Ma'am, करते हैं तो हम अपने आउट ऑफ बॉडी चले जाते हैं, हार्ट एक्सपेंड कर रहा है और आप वाइब्रेट कर रहे हो, तो आप उस वक्त भी ग्राउंडेड रहोगे, है ना, अपनी बॉडी में आना आसान हो जाता है। तो बहुत लोग बहुत डीप चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं इंफॉर्मेशन जो होती है हम अपने एक्सपीरियंस मतलब बात पहले ही शेयर कर लेते हैं, क्योंकि मेडिटेशन के बाद बहुत लोग बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना डीप हो जाता है। जी। बहुत ही सुंदर। 3 क्रिस्टल्स हुए, एमेथिस्ट, रोज क्वार्ट्ज और ब्लैक टर्मलिन रखा था। ब्लैक टर्मलिन ग्राउंडिंग में हेल्प करता है, लेकिन अगर आपको कोई और क्रिस्टल उस वक्त आता है, आप ग्रीन एवेंचुरिन रख सकते हैं, जो भी आपको क्रिस्टल आता है, कोई भी 3 क्रिस्टल आप रख सकते हो। जी। जब हम ब्लैक टर्मलिन रखते हैं ना तो वो आपको ग्राउंड भी करते हैं। आप सेलेनाइट रख सकते हो, तो सेलेनाइट जितनी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है उसको एब्जॉर्ब करके ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म कर देता है। हम धरती माँ को भी अपना गंदगी नहीं दे सकते, तो हम वहां पे भी, जैसे हम कहते हैं ना, नदियों को अगर क्लीन रखना है तो क्या करेंगे, फिल्टर पहले ही लगा देंगे ताकि नालियों का को गंद वहां पर ना जाए। हम भी अपने एनर्जी सेंटर में हम पहले तो वायलेट लाइट बुला रहे हैं, ताकि जो भी है वो ऊर्जा को ट्रांसमिट कर दे, और क्रिस्टल्स वो एब्जॉर्ब कर ले। और अब एब्जॉर्ब करने के बाद सेलेनाइट क्या करता है, वो खुद ही प्योरीफाई कर देता है, खुद ही क्लीन कर देता है। तो हम धरती माँ में भी अपना जो भी रिलीज करें उनको भी गंदा और पोल्यूट नहीं करते, तो इसलिए हम ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ग्रेटफुल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक दीदी यू। रिकॉर्डिंग थैंक सेंड यू करने मिकी को, जी। जी जी हाँ जी, जी रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए। हाँ जी, करेंगे करेंगे। जी। मैं ओके, मिकी, बहुत अच्छा मैं सेशन, बहुत यस, अच्छा था, थैंक यू आज का सेशन बहुत ही सुपर सुपर। दीदी, थैंक यू, बहुत लाइक थैंक यू। किया आज। लॉट्स थैंक यू ऑफ माँ। एनर्जी था। यस, थैंक यू, आज आपने इतना दिल खोल के हमको दे दिया सब। वाज सो ग्रेट, सो ग्रेट। थैंक यू मिकी जी। यस, थैंक यू। आप ये लाइट लैंग्वेज में कब से शुरू किया है? फॉर लॉन्ग टाइम? हाँ, मैं बाली गई थी, हमारा एक स्पिरिचुअल टूर था, और वहां पर एक हम टेम्पल में जैसे एंटर करने लगे, तो बस से भी नीचे ही उतर रहे थे, तो वहीं पर नीचे उतरते उतरते वो सारे चैनल्स वहां पर ओपन होने लगे। और जैसे ही मैंने पैर रखा फर्स्ट स्टेप, और वो जो लाइट लैंग्वेज वहां पर जब शुरू हुई, तो हमारा जो ग्रुप था, इंटरनेशनल ग्रुप था, सभी कंट्रीज के लोग थे वहां पर, 150 के करीब थे हम।
तो वो जो प्रोसेस शुरू हुआ उस वक्त, उस दिन मैं नॉन स्टॉप, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो मैं बोल रही हूँ ना मेरा उसके ऊपर कंट्रोल रहा, और ना ही वो रुक रही थी, ना ही वो मेरे रोकने से रुक रही थी। तो वो बहुत शुरू शुरू में बहुत एम्बैरेसिंग भी लग रहा था, लेकिन उस वक्त मैं अपने होश में नहीं थी। तो वो उस वक्त मैं नॉन स्टॉप कितने घंटे में ये मैं बोलती रही, और तब तक बोलती रही जब तक एक कहते हैं ना कि पूरी एक उसमें नहीं आ गए कि आपका अपनी सुध बुध खो बैठे, और आपका पूरे वो डाउनलोड हो रहा है आपके एनर्जी सेंटर्स में। तो वो ये वाला सिस्टम वहां पर शुरू हुआ था। और इसको बैलेंस करने में बहुत वक्त लगा, क्योंकि जहां जाती थी वो नॉन स्टॉप, जरा सा मैरिज में जाती थी, जरा सा कैमरे की वो लाइट पड़ती थी वहीं पर शुरू हो जाती थी। तो बड़ा एम्बैरेसिंग कि कोई फोटोग्राफर फोटो खींचने के लिए आए, और फिर मैं भागने लग गई कि किसी मैरिज में नहीं जाना, किसी के घर नहीं जाना, फंक्शन नहीं जाना, कि ये क्या हो गया। और बहुत टाइम लगा इसको सेटलमेंट में, फिर धीरे धीरे ये कंट्रोल में जैसे आने लगी। तो इसीलिए जब हम अपनी रिट्रीट्स में हम जाते हैं, हम एक स्पिरिचुअल ग्रुप के साथ होते हैं, और आपका आसपास के लोग उस एनर्जी Energy, में होते हैं, energy. तो वो एक्टिवेट होती है। तो हम जो हमारे ग्रुप्स में तभी बहुत सारे लोग लाइट लैंग्वेज बोलना शुरू कर दिया। हमारे साथ जो रिट्रीट्स में गए हैं ऑलमोस्ट उसमें से काफी लोग 80-90% हमारे साथ जो रिट्रीट में जाते हैं उनका लाइट लैंग्वेज शुरू हो जाता है। तो क्योंकि बेस बना होता है और उस एनर्जी में रहते हैं और सारा दिन एनर्जी को होल्ड करके रखते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ओपनिंग होती है। जी। तो अब तो बहुत सारे लोग जो हमारे ग्रुप में आए और जिन्होंने हमारा एसेंशन का कोर्स शुरू किया, काफी लोग लाइट लैंग्वेज बोलते हैं। जी। हम्म। ये मैं लाइन बहुत पावरफुल है, मैं अरहस्तस्तोम श्या। क्योंकि आप एक लाइट लैंग्वेज चैनल हो, आप भी लाइट लैंग्वेज बोलोगे वेरी सुन। अस्तु शास्त्र। जब मैं आपको सुनती हूँ तो पूरा दिन मेरी भी यही लाइट लैंग्वेज चलती रहती वही सेंटेंस, वही पूरा दिन रात वही चलते रहते हैं। वही चलता है क्योंकि आपके अंदर की है ना वो। जब Energy. एक भाषा और के आप गुजरात में जाओगे तो गुजराती बोलने लगोगे, पंजाब में आओगे तो यहाँ पंजाबी, तो वो सेल्स को समझ में आती है, फिर उसको वो होम फीलिंग लगती है। होम आप फीलिंग जहां लगती मर्जी है, चले अपनी जाओ, आप लगती है। जब आपके मदर टंग बोलने वाला कोई मिल जाएगा तो कितनी खुशी मिलती है, तो आपके सेल्स भी इसको रेजोनेट करते हैं, वाओ। तो वो बोलना शुरू कर देता है, वो डांस करना शुरू कर देता है, तो वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। जी। So true. So तो true. Yes. Yes. Same आप feeling. आप ब्लेसिंग्स हो हमारे सबके लिए। हम आपको सब ब्लेसिंग्स है। हमारे Yes. अंदर की लाइट को हमने ही बंद किया था ना, तो जब वो ऑन किया तो हमको खुद पता लगने लग गया कि हम कौन है, तो वो ही प्रोसेस को एक्टिवेट करना है। सच। जी। थैंक यू सो मच। मिक्की जी, माधुरी जी मेरी बहन है, मेरी हम्म। छोटी बहन है, जी और जी। स्पिरिचुअलिटी में बहुत टाइम से शी इज सो हम्म मच involved in this for longest time, हम्म। and quite a, ओके। very good, very good soul. Yes. ओके। Thank you. Thank you. मैनी ब्लेसिंग्स टू हर ऑल्सो। Yes. देश। जी। तो बहुत आवाज में ठहराव है जब Yes. मैं सुन रही थी, एंड बहुत उभर के होता क्या है कि हम स्पिरिचुअलिटी में जब आते हैं ना, तो Yeah. हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत चीजें ऐसी होती है, लेकिन उनको जैसे वही कि वो जो लैंप है उनको शाइन करवाना पड़ता है। कुछ चीजें तो अपने आप सेल्फ स्टडी से चली जाती है ना, सेल्फ स्टडी हम करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें नोट्स लेने पड़ते हैं, है ना, थोड़ा सा वर्क करता है। जैसे जैसे हमारी लाइट बढ़ती जाती है, काम भी बढ़ता जाता है। तो ये ऐसा ही है, नर्सरी में हम बैठते कैसे होते हैं, फर्स्ट में कैसे पढ़ाई वो भी कर रहा है, फिर 10th की पढ़ाई है, फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, तो पढ़ाई बढ़ती जाती है, काम बढ़ता जाता है। और जितना ज्यादा हमारा जो इनर लाइट बढ़ती जाएगी, जितना ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, उतना काम भी ज्यादा होता भी जाएगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो आज नहीं तो कल लाइट लैंग्वेज बोलेंगे। अपने Yes. अपने ही डर से बाहर आएंगे और लाइट लैंग्वेज बोल पाएंगे, नहीं तो और बोलता निकी, वो लाइट लैंग्वेज। आपने जो एग्जाम्पल देख के समझा है ना, तो इट मेड लॉट ऑफ सेंस
why this is happening to a person, Yes, and you are the only person who can resolve it. yes, It's जी super, super. जी। Thank you so much. क्योंकि हम क्या करते हैं कि कूड़ा, हम अगर आपने अपने रूम में बहुत कूड़ा डाला हुआ है, आपने बाहर से अपने गेस्ट बुलाए हुए हैं, तो वो गेस्ट, आप क्या उम्मीद करोगे कि आपके गेस्ट पहले आके झाड़ू मारे कमरे में, फिर डस्टिंग करे और फिर बैठे? हम यही चाहते हैं, हे भगवान तू हमारा कचरा साफ कर। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान मैंने कचरा डाला हुआ है, प्लीज साफ करो। वो भगवान आपका मुंह देखते ही, ये क्या बोल रही है? सच्ची हम यही बात है, करते हैं, सच्ची हम बात करते है। यही हैं। हम हर मंदिर में जाते हैं, भगवान ये कर दो। वो बेचारा वो दोनों आंखों से आपको दिख रहे है, मैं कूड़ा के पहले झाड़ू मारूं? मतलब इतनी बाहर भीड़ लगी हुई है, इतनी लंबी, किसी का मतलब, और वो कह रहा है कि बाल्टियां उठाओ कचरे की और बाहर फेंको। तो ये करते हैं हम लोग। तो अपने घर की सफाई करने को हम मंदिर में पहले तो हम घंटी बजा के उसको जगाते हैं, चलो भाई करो हमारे घर के। वो स्वीपर लगे हैं क्या? सच्ची बात है, आपकी बात हम वेरी करते ही ट्रू। हैं, हम हर मंदिर में ये करते हैं जाके, भगवान जी बहुत कचरा पड़ा है, बहुत कूड़े के ढेर हो गए, तो वो क्या बोलेंगे, भाई स्वीपर को बुलाओ, मेरे को क्यों बुला रहे हो? भी वो बार बार उठ उठ के लोगों के घरों में जाके झाड़ू मारे, कचरा साफ करें, और फिर आप फिर डाल दो। या तो ना, चलो उन्होंने चल एक बार दया करके कर दिया, अब तो फिर डाल दोगे। जब हम खुद साफ करते हैं तो पता होता है ना कि दोबारा कचरा नहीं डालना। देखो कैसा कर्फ्यू लगता है जब घर में पोछा लगता है, और उसके बाद माओ का कैसा कर्फ्यू लगता है, मजाल है कोई पैर रख दे। और अगर स्वीपर ने मारा तो कहते हैं चल मार दो, मार दो, दोबारा मार दो। तो हमने भगवान को भी ऐसा बना दिया, आओ जी, ओ भगवान कहा हो तुम, बहुत कचरा हो गया है, कौन साफ करेगा अगर आप साफ नहीं करोगे तो? ऐसा थोड़ी है कि आप ऊपर बैठे रहोगे, छुट्टी थोड़ी है आज कि आप आओगे नहीं नीचे, मेरा कचरा साफ नहीं करोगे। यहाँ पे मेरा रोना निकल रहा है और आप ऊपर से बैठे हुए क्या काम करते हो? आप भगवान हो कि क्या हो? तो हमने क्या बना लिया भगवान को? Oh my God, you are so good. हम ऐसे करते हैं, और हम यही मांगते हैं भगवान से जाके, कचरा साफ कर दो, बहुत कूड़ा हो गया, मक्खियां बैठ गई, ऊपर गंदगी है, आपको दिख नहीं रहा भगवान जी, मेरे को रोना आ रहा है, आप साफ करो आके, मेरे को और रोना आ रहा है, आप साफ क्यों नहीं कर रहे? ये काम कर रहे हैं। फिर हम बोलते भगवान हमारी सुनता नहीं है, पता नहीं कहाँ बैठा रहता है आंखें बंद करके। वो तो आंख बंद कर, तो हमारे जो एक पार्टिसिपेंट थे, तो वो कहते हैं वो मैं गुरु नानक देव जी, वो तो ऐसे करके बैठे रहते हैं वो। तो मैंने उनको बोला आप ऐसे ही बैठे रहो। तो कहते मैंने उनको बोला आप ऐसे ही बैठे रहना, आप आना ना। तो मैंने कहा कि वो आपका कचरा थोड़ी साफ करने के लिए आएंगे बेचारे भगवान, उन्होंने मेडिटेशन इसलिए थोड़ी करी कि वो आप सबके घर का कचरा साफ करके आएंगे। कि वो लाइट दे सकते भाई, मैं अपना प्लग इन कर ले, चल मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। आपके गेस्ट अगर उनको सोफे पे बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी कि कचरा पड़ा हुआ है, तो कितनी बार आ जाएंगे आपके घर में कि उनके घर में जाके तो पहले झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, तब बैठे पाएंगे। कितनी बार चले जाओगे आप अपने फ्रेंड के घर पे, दूर से फोन पे ही हालचाल पूछ लोगे। तो भगवान भी ऊपर से पूछ लेते हैं हालचाल कि जब सफाई हो जाएगी तो बुला लेना, कम से कम बैठ तो पाऊं। तो ये प्रोसेस है हमारा। Very nice. So very good very analogy. good, very good. देखिए मैं बड़ी बड़ी बुक से कोई एग्जाम्पल नहीं देती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरे एग्जाम्पल जो बिल्कुल जो हमारे घरों के होते हैं ना, मैं वही एग्जाम्पल देती हूँ, बराबर है। अच्छी है ना। बात। भगवत गीता में क्या लिखा, यजुर्वेद में क्या लिखा, उसमें क्या लिखा, उससे ज्यादा जो आपको रेजोनेट, जो हमारे बिल्कुल करीब है, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम समझते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, और जो सच है। तो हमारा जो प्रोसेस है कनेक्ट होने का, वही बहुत गलत है। तो इसीलिए हम पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते। आप चाहते हैं कि आपके कमरे में कोई और हो, आपकी लाइट भी बंद हो, बेचारा पहले तो ठोकर खा के नीचे गिरे, एक तो कूड़े के ढेर लगे हो, और बेचारा अंदर आए और धड़ाम नीचे। बैठने के तो भूल ही जाओ, झाड़ू पोछा तो आप उसको बाद में दोगे, पहले तो वो अपनी चोट को ठीक करेगा कि क्या, फिर वो झाड़ू मारेगा, पचका मारेगा, फिर बैठेगा, तब तक वो बेहोश हो जाएगा, थक जाएगा, और बोलेगा ओके राम राम, और वो चला जाएगा, फिर दोबारा डर के मारे नहीं आएंगे। We are so used to Alexa, do this, do that. हम यही करते हैं और यही करते आ रहे हैं, और आगे अपने बच्चों को भी सिखा दिया। वो कहते हैं कि आपकी जान ना खाओ, आपकी लाइट ना जलाओ, जाओ भगवान के मंदिर की लाइट जला लो, वही ठीक है। तो हम वहां की लाइट जला देते हैं, वहां पर एक दिया जलाते हैं, तुम जलते रहना, तुम्हारा दिया नहीं। वो कहता भी मेरा दिया तो जल रहा है, मेरे अंदर लाइट जल रही है,
खुद का ही करो। और वो अपने अंदर जला लो, वो बेचारा वो भी ऐसे करता होगा सचमुच में। पर हम कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा दिया जलना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास लाइट कम है, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत है, तो मेरे को तो जरूरत नहीं। हम कहते हैं भगवान के घर का दिया जला दिया और वहीं पर ही खुश है। उसके अंदर, हाँ, वहां का दिया बुझना भी नहीं चाहिए, उसमें डालते रहेंगे तेल। तेरा दिया बिल्कुल नहीं बुझना चाहिए, तुम काम 24 घंटे करना चाहिए। अपना काम खाना बनाना है, व्रत का सामान बनाना है, लोगों को देना है, गेस्ट आने हैं, भगवान तुमने थोड़ी ये काम करने हैं। तुम्हारे अंदर लाइट जलती बुझनी नहीं चाहिए। मैं अपनी अपनी लाइट बाद में देख लूंगी, हफ्ते में एक बार सही या 2 हफ्ते में एक बार सही, हमारा तो इतने में चल जाता है। तो ये सिस्टम है हम मेडिटेटर्स का, हम ये करते हैं। तो हम हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं, तो अंदर क्या है देखना। सब बोलते हैं अंदर, तो अंदर क्या है? कभी किसी ने पूछा कि अंदर क्या है? बाहर ही तो दिया जला रहे हैं ना, बाहर ही रख दिया, उन्हीं के आगे रख दे जिनके अंदर खुद ही लाइट है। हम उनके आगे दिया जला रहे हैं। अभी तुम्हारा दिया बंद, हमारे को सेटिस्फेक्शन होती है ना ज्ञान देकर, हमको बहुत खुशी मिलती है। वो अंदर से बोल रहा होता है कि तू इसका तेल खत्म है, मेरे अंदर है ऑलरेडी, क्यों वेस्ट कर रही हो? पर हम नहीं मानते, ना 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 ना, तुम्हारा नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर तो बहुत है। अपने अंदर हम नहीं डालेंगे, दिया नहीं जलाएंगे, तेल नहीं डालेंगे। तो आज से हम ये प्रोसेस स्टार्ट रखेंगे कि अंदर का जो दिया है वो भी चलता रहे, है ना? Excellent analogy. Try. Super. Excellent. Thank you so much. Thank you. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you. Lots Thank of you. love. Lots of love. Lots of love. Right. जी जी, Lots of healing. Lots of love. Lots of healing and lots. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you all for joining. Wherever you are from, thank you. Thank you. See you all next week, my dear friends, and will be amazing session coming up next week also. અમે પણ તમારો નંબર આપો અમને, તો અમે પણ જોઈન થશું તમારા ત્યાં. 100%, Alpaji. Thank you. Thank you. હા, Yes. હું પણ અલ્પા ડેડિયા છું. I was I see your name, Alpa Daria. I'm Daria too. Yes. પણ અમે ઇન્ડિયાથી છીએ, તમે ક્યાંથી છો? Right. I'm US થી. Alpa We are Ben. on the same boat. Yes. Tomorrow, Okay. if you can put your number, or I can write it down your number, and I will definitely send it. दीदी इसमें नंबर डाल दिया है मैंने। हाँ जी। ओ Alpa ji, what's your number? लगवाया नहीं, लग गया। 9833 9833 42 42 again 42 Yes. 12. Okay. Yes, I'll definitely join you. And Thank you. yes, thank you all for joining. And next week we have an amazing session coming up from PMC Mumbai. His name his name is Mahesh Agrawal. He's the main person of PMC Mumbai. Okay. For a long time, he was connected with Osho. He was another disciple of Osho. A lot of knowledge of Osho. Also, and Patriji. Last few years of the Patriji, he was always together with him also. So amazing person will be coming up next week, and see you all. Love you all. Have a divine night and divine day wherever you are. Yes, sir. And talk to you soon. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.